بریک کے بعد خوش آمدید. آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو. ملک منور صاحب، صحافت سے آپ کا ایک وسیع ایک تجربہ ہے اور ایک سفر ہے. آج کل کی جرنلزم اور اس وقت کی جرنلزم میں ایک تو ڈیفرنس کیا ہے، یا سب ویسا ہی ہے، وہی نظریات وہی افکار ہیں، اور حکومت کس قدر صحافیوں کو حقوق دینے میں مطلب سیریس اور سنجیدہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ساجد بھائی، جہاں تک صحافتی تنظیموں کی بات ہے یا صحافت کی بات ہے، تو جہاں دیگر حکومتوں کا طرز حکمرانی بدلا ہے یا سیاست کے جو زاویے ہیں وہ بدلے ہیں، وہیں پر ہی صحافت کا جو طرز صحافت ہے وہ بھی بدل چکا ہے. اب وہ صحافت نہیں رہی. بالکل ایسا ہی ہے. جو ایک قلم کی صحافت کہتے تھے، ایک اخبار ہوتی تھی، لوگ اس کی انتظار کرتے تھے، چھپنے کا بھی انتظار ہوتا تھا، اس کو باہر سپلائی ہونے پہ بھی پھر لوگ لینے لگ کے خریدتے تھے، اور اس خبر کا ایکشن ہوتا تھا اگر کسی کے خلاف لکھی جاتی تھی تو. اور ایسی بھی خبر نہیں تھی کہ ہوا میں لکھی جائے، ثبوت و پروفوں کے ساتھ. مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ صحافتہ میدان تو زیادہ کھلا ہے، بڑا ہے میدان. الیکٹرونک میڈیا آنے کے بعد ایک وہ ٹائم آیا کہ الیکٹرونک نے جو ہے وہ اتنا محاذ گرم رکھا کہ ہر طرف جو ہے وہ صرف صحافی تھے. وہ ٹرن اوور جو تھا الیکٹرونک کا جب آیا تو اس وقت صحافیوں کا ایک اپنا بہت بڑا امیج بنا یقیناً. مگر یہ بھی اپنی بات ہے تو اس کے اوپر بھی ہمیں یہ ذمہ داری بھی، یہ کوتاہیاں جہاں پہ ہم سے ہوئی ہیں تو وہ بھی ہمیں قبول کرنی چاہیے. اس پہ بھی ہم نے اچھے طریقے سے لیور نہیں کر سکے. ہماری یونین کے چاہے وہ صدور تھے، جو بڑے قداور جو شخصیات تھیں صحافت کے، جن سے طرز ہم نے سیکھی، طرز سیاست بھی سیکھی، ان سے صحافت بھی سیکھی ہے. تو بہت سارے لوگوں نے تو بہت اچھے اقدامات اٹھائے چلے، مگر ان کے ساتھ پیچھے آنے والوں نے جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، اپنے ان لیڈرشپوں کے جو نظریات کے اوپر چلنا چاہیے تھا، وہ نہیں چلے. اچھا، ابھی میں دیکھ رہا تھا سندھ حکومت نے کچھ ہیلتھ کارڈ تقسیم کیے صحافتی حلقوں میں. وفاق کی طرف سے کوئی ایسا پیکیج، کوئی ایسی مراد؟ شبلی فراز صاحب بھی دورے پر آ چکے ہیں کراچی، تو انہوں نے کوئی یقین دہانی کروائی؟ سچ بھائی، صحافیوں کو تو ہمیشہ وعدوں پہ ہی ٹلکایا جاتا ہے، اور یہ صرف اس موجودہ گورنمنٹ نے نہیں، ماضی میں بھی ہوتا آیا ہے. اور سندھ کی جہاں تک میں بات کروں تو پیپلز پارٹی شاید میرے خیال ہے وحد وہ جماعت ہے جس نے صحافیوں کو، پریس کلب کو گرانٹ بھی باقاعدگی سے دیتی ہے، اور پلاٹس وغیرہ بھی ان کو دیے جاتے ہیں جو پریس کلب کے ممبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسری بات آ گئی کہ اب صحافتی تنظیمیں بھی بہت ساری بن چکی ہیں، وہ بھی بہت ساری بن چکی ہیں. ہر ایک نے اپنی اپنی دکان کھول لی. پہلے تو ایک کراچی یونین آف جرنلسٹ تھی، پھر فیڈرل یونین آف جرنلسٹ سے زیادہ وہ کنٹیکٹ ہوتی تھی جو بڑی یوجز ہوتی تھی. تو اب وہ بہت نہ صرف کراچی بلکہ اور جگہوں پہ بھی یہی صورتحال ہے. تو یہ جو اصل میں جو میڈیا ہاؤسز کو مالکان ہیں وہ، اور جو صحافتی تنظیموں کے جو معاملات ہیں وہ کچھ صحیح نہیں ہے. ان کے کردار جو ہے وہ کچھ عام صحافی کے لیے صحیح نہیں ہے. عام صحافی کافی قسم پرسی کی حالت میں ہے. موجودہ گورنمنٹ نے، اگر سندھ گورنمنٹ نے کوئی ہیلتھ کارڈوں کی بات آپ نے کی ہے، تو وہ بھی یہ میں سمجھتا ہوں یہ صحرا جی ایم جمالی صاحب کو اور حسن عباس صاحب کو جاتا ہے. ان کے گروپ نے یہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ ایشو کروائے ہیں اور ان کو دیے. انہوں نے کہا کہ نہ صرف وہ جرنلسٹ جو کہ ممبر ہے یونین کا، بلکہ انہوں نے کہا کہ آئندہ ان کی فیملی کا بھی جو ہے وہ صحیح علاج ہو سکے گا. تو یہ تو میں تو کہوں گا کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ چلو کچھ تو صحیح، کیونکہ علاج بہت مہنگا ہو چکا ہے. بالکل ایسا. آپ گلی کے ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جائیں نا، چھوٹا جو گلی میں ڈھابا لگا کے بیٹھا ہوا ہے نا، وہ بھی 1000 روپے سے کم جو ہے وہ اب دوائی نہیں دیتا. 100 200 300 تو اس کی فیس ہو جاتی ہے. پھر وہ ٹیبلٹ وغیرہ کو لکھ دیتا ہے، پھر اگلے دن بلا لیتا. مطلب بندے کی حالت. آگے روزگار کیا ہے؟ تنخواہیں نہیں ہیں. تنخواہوں کا بہت بڑا ایشو ہے. متفقہ طور پر متحد ہو کر ابھی تک صحافیوں نے جس حالات سے یہ جو پروفیشنل ورکر جرنلسٹ متاثر ہیں، ان تنظیموں نے وہ کردار ادا نہیں کیا. اب میں اس کے اوپر زیادہ تو میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ وہ تو خود تنظیموں کے جو نمائندے ہیں، جو ذمہ داران ہیں، وہ بیٹھ کے بات کریں. مطلب ایک نظریاتی، آپ جیسے ایک جرنلسٹ ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو سول سوسائٹی ہے ان کی کمپلین کرتی ہے، جی ہمیں تھریٹ کال آتی ہیں، ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے کچھ صحافیوں کی طرف سے. ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں،
साजिद भाई, अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं, और जहां हर महकमों में, हर इदारों में काली भेड़ें होती हैं। उनकी निशानदेही कैसे हो, उन पर जब कानूनी कार्रवाई होती है तो तमाम तंजीमें? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। ऐसा नहीं हुआ। कराची में 2-3 वाकयात ऐसे हैं कि वो फेक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने फेक कार्ड वगैरह बनाए हुए थे, और उन्होंने इसी तरीके से भत्ते की उनकी शिकायत वगैरह मिली थी, ब्लैकमेलिंग की, उनके ऊपर एफआईआर कटी हैं। कराची की किसी तंजीम ने उनके खिलाफ, उनके साथ जो है वो आवाज नहीं उठाई। 9 से इकदाम के खिलाफ वो खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि इनका हमारे से कोई तल्लक वास्ता भी नहीं है, और अच्छी बात है। देखे ना, प्रोफेशनल जो जर्नलिस्ट है, जो ग्राउंड पर वर्क कर रहा है, जो काम करता है, जो इदारों से मुंसलिक है, वो तो कभी भी ऐसे किसी गलत काम में मुलविस नहीं होएगा। क्यों? कि उसको अपनी इज्जत और इस कलम की हुर्मत जो है वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी होती है। उसको पता है कि कलम की जो हुर्मत है वही उसकी आन है, वही उसकी शान है। वो कभी भी उसको मुलायम नहीं होने देता। अच्छा, मगर एक मासूमाना सवाल है, मतलब हमने अक्सर देखा है कि उन सहाफ़ी हज़रात पर बड़ा प्रेशर होता है। अगर वो किसी लैंड माफिया के लिए कोई ख़बर लिख दें, या किसी बड़े ताकतवर के लिए कोई इस तरह का कोई मामलात हों और हक़ाइक़ पर मबनी हो, तो क्या फीलिंग्स होती हैं उस वक्त? साजिद भाई, माजी के जख्म को आपने जगा दिया। लिखना बड़ी बात होती है, एक क्वेश्चन करना भी बाज़ औक़ात जो है वो एक जुर्म बन जाता है। आपको याद होगा कि 2012 के लास्ट का मेरे ख्याल ये वाक़या है, जब ये कमीशन निज़ाम सिंध में पास हुआ और शाहिद सईद के घर में एक तकरीब रखी गई, और जुल्फ़कार मिर्जा से मुझ नाचीज़ ने जो है वो कोई क्वेश्चन कर दी है, और उसके बाद जो है मैं खुद जो है किडनैप हो गया, और मैं खुद जो है वो बलूचिस्तान के पहाड़ों से जिस अज़ियत से मुश्किलात झेल कर आया, वो सारी दुनिया ने देखा था। वो सब चैनलों पे भी सामने है, और उस पर यही सवाल होता था मुझसे जब तशद्दुद किया गया, पूछा गया कि आपको ये किसने कहा था कि ऐसे सवाल करें, ऐसे स्टोरी ब्रेक करें? वो भाई कौन कहेगा? साफी का काम है, जो वो देख रहा है वो लिखता है, वो करता है, वो बोलता है। वो सिर्फ कलम से करेगा, वो अपनी जबान से बोलेगा, हर जगह से आएगी आवाज। जो देख रहे थे हमने तो वो पूछा, तो हम पे तो ये गुजरी हुई है। तो सिंध हुकूमत तो ये गुजरी हुई है, मतलब तीसरी बार साहिब इक़्तिदार है। अगर हम 90s में नहीं जाते तो कोई उस पर एक्शन हुआ? क्योंकि सिंध हुकूमत हम ज़्यादा देखते हैं कि जमहूरियत के लिए इनकी कुर्बानियाँ भी ज़्यादा हैं, और ये आज़ादी सहाफ़त पर बड़े बड़े मतलब उनकी तरफ से बयानात और दावे होते हैं। कोई आपको कोई इंटरटेन किया? देखिए, इंटरटेन की जहाँ तक बात है, जो प्रोफेशनल सहाफ़ी होगा ना, वो कभी इस चीज़ की डिमांड भी नहीं करता, और कभी कोई कहे भी सही तो वो उसको मानता भी नहीं है। क्योंकि उसकी ज़ात जो है उसको सिर्फ ये होता है कि मेरी जो इज़्ज़त है वो लोगों में एक अच्छे अल्फाजों के साथ हो, मेरा नाम जो एक अच्छे अल्फाजों के साथ लोगों को याद रखा जाए, यही उसका सब कुछ होता है। चलें आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मलिक साहब, हमने देखा इलेक्शन का एक समा हुआ, बाय इलेक्शन हुए मुख्तलिफ हल्कों में, ज़िमनी इलेक्शन में ठीक है अपोजिशन की जमातें विन कर गई और पीटीआई का सिंध में वोट बैंक कम हुआ, लेकिन आप नहीं समझते कि वो 2008 की पॉलिटिक्स और कारकुन आपस में गुत्थम गुत्था हुए, फिर हलीम आदिल शेख साहब के ऊपर केसेस हुए, ये पॉलिटिकल पार्टीज फेस होती हैं, अब आने वाली नस्लें इनसे देख रही होती हैं, इनको टेलीविज़न पर, और ये कानून पास करते हैं, हुक्मरान हैं, हुक्मरानों के इस रवैये के लिए क्या कहेंगे? मतलब कैसे ये चीज़ें ख़त्म हो? देखें, जो कुछ हलीम आदिल शेख साहब के साथ हुआ है, या जो कुछ ज़मनी इलेक्शन में वहाँ पर हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। इंतखाबी दंगल होता है, इंतखाबी मैदान सजते हैं, और ये पंजा आजमाई, जोर आजमाइयाँ तो होती रहती हैं, छोटे मोटे वाक़यात होते हैं। डस्का इलेक्शन में भी हमने यही हालात देखे। इतनी बड़ी पोजीशन पर आके इस तरीके से सूरत हाल क्रिएट कर देना, सिचुएशन इस तरीके की पैदा हो जाना, ये एक बड़ा एक सवालिया है, निशान है। तो फिर उसकी वजह अभी देखिए ना, पीटीआई हुकूमत ने 12 इल्ज़ाम लगाया कि हमसे रिवेंज लिया जा रहा है, बदला लिया जा रहा है हमसे। कैसे ये क्या सब ठीक हो रहा था? नहीं, सच में किस चीज़ का बदला लिया जा रहा है? मैं हलीम आदिल शेख साहब को ज़ाती तौर पर जानता हूँ, हमारे अच्छे दोस्त हैं। वो अपनी बिल्कुल जान लड़ा के जो है वो सियासत के मैदान में इस वक्त वो
कूदे हुए हैं, यकीनन वो सियासत कर रहे हैं, मगर उनको भी कुछ चाहिए कि अब जो कद उनका बन चुका है उस कद काट के हिसाब से सियासत करें ना। अब वो जिस तरीके से उनका एक अंदाज सियासत है ना, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी बर्दाश्त करेगी बल्कि हल्के के आवाम भी जो है उसके ऊपर तनकीद कर क्या जाते हैं। इखलाकियात का फुकदान इखलाकियात है? का फुकदान है। अच्छा। इखलाकियात के दायरे में रहकर अगर बात की जाए ना तो मैं समझता हूँ कि ऐसे माहौल जो है वो पैदा नहीं होते। यही सूरत हाल हम ऐवानों में देखते हैं। ऐवानों में भी आपने देखा गुज़िश्ता दिनों भी ऐवानों में भी यही सूरत हाल रही, या वो कौमी असम्बली का ऐवान था या वो सूबाई असम्बली का ऐवान हो। तो ये जब ये सूरत हाल जब दुनिया देख रही हो, पाकिस्तान की आवाम देख रही होती है कि आवाम में इस तरीके से आप कुश्ती लड़ रहे हो, जैसे कोई दंगल लड़ रहे हो मैदान, जहां पर कानून साजी होनी है, जहां पर लोगों के मसाइलों के हवाले से आपने तजावीज देनी होती है, डिबेट की जाती है, वो होती नहीं है। सियासी तकरीरें की जा रही होती है। खुदा की कसम जब मैं असम्बली में जाता हूँ, असम्बली का इजलास कवर करने के लिए उस कवरेज पे जाते हैं तो दिल नहीं करता कि उनकी कौन सी बात नोट की जाए। कौमी असम्बली का एजेंडा क्या है और तकरीरें क्या हो रही हैं, प्रोग्राम क्या हो रहे हैं, सिर्फ खुशामद मतलब तामीरी चीजें नहीं नजर आ रही होती, बहुत कम हो रहा है तामीरी। हालांकि इजलास चलने चाहिए भाई। पाकिस्तान मसाइल में घिरा हुआ मुल्क है, सूबों की क्या हालत है, पानी नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है। अब जगह जगह पर मिनरल वाटर की दुकानें लग गई हैं, लोग पैसे से खरीद रहे हैं पानी। जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल और मिनरल वाटर की बोतल का एक ही रेट है। तो आगे चल के क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? तो ये जो करना चाहिए। पार्टी ने कहा जी हमने बहुत सारे आरओ प्लांट लगवा दिए, थर में हमने कुएं खुदवा दिए, ये मतलब ग्राउंड में नजर क्यों नहीं आता? देखें, अगर थर की बात की जाती है तो थर भी आज भी मसाइल ज़्यादा है। कराची की मज़ाफाती सोसाइटियों में नहीं कितना देखा, हर जगह पर गवर्नमेंट कितने लगाएगी, किस जगह पे लगाए, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग की जाए तो लगाए जा सकते हैं। टाउन सतह पे, यूसी सतह पे, अगर देखो कराची में जितनी यूसी हैं, अगर एक यूसी में आप सरकारी सतह पर आरओ प्लांट लगा दें और लोगों को उस पर सहूलत मैसर हो रही हो तो आपके अच्छाई के गीत ही गाएंगे ना। मगर ये करना नहीं है, करप्शन की नजर हो जाते हैं चीजें। अगर कोई प्रोजेक्ट बना भी दिया जाए तो तख्ती लगाने तक तो बड़ा जबरदस्त साफ सुथरा चमक दमक रहा होता है। जैसे ही वो जो गेस्ट होता है, जो लीडर होता है, वो वापस जाता है तो उसके बाद उसकी हालत ऐसी होती है कि दूसरे दिन वो ही लीडर आके अगर चुपचाप मैं समझता हूँ विजिट करे तो उसको खुद अंदाजा हो जाए कि होता क्या है। आप बहुत सारी सड़कें देख लें, खुद ही पड़ी रहती हैं, पता नहीं है। हालांकि मुराद अली शाह साहब ने शुरू में अच्छा उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था कि वो खुद सड़कों पे निकलते थे, गलियों में जा रहे थे, इलाकों में जा रहे, मॉनिटरिंग कर रहे थे, देख रहे थे, मगर अब वो भी दब गए हैं। शायद दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि कोरोना ने जो है ना इनको सारे हुक्मरानों को ना बड़ा जबरदस्त मौका फराहम किया छुपने का। ये कोरोना की आड़ में जो है ना अब बहुत कुछ छुप जाता है। अच्छा, यानी कि इनकी नाअहलियत भी छुप रही है, ना कुछ करने के बहाने भी छुप रहे हैं कि यार वो कोरोना है, ये है, वो है। बाकी इनके अपने की वजह से तो और इनके मामला आसान हो गए। इनके आसानी से गुजर रहे हैं, जो इन्होंने करना होता है वो कर लेते हैं, वो घरों में बैठ के भी कर रहे हैं। मगर अवाम क्या करे? नहीं, कुछ नाक़दीन का कहना है कि सिंध हुकूमत की ग्रिप तो बहुत मजबूत है अपने सूबे में। नहीं, सूबे में तो कोई शक नहीं है। अगर मजबूत न होती तो जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के साथ होता रहा है इलेक्शन में भी और कोशिशें की गई हैं, तोड़ फोड़ भी होती रही है, तो वो नहीं हो सकी ना। ग्रिप तो बड़ी जबरदस्त है। आप तो इधर की ग्रिप की बात कर रहे हैं ना, जरदारी साहब जिसको कहते हैं ना, वो एक जरदारी साहब पे भारी, तो वो मुख्तलिफ और भी नामों से तो पुकारे जाते हैं, मगर वो वाकई एक जरदारी साहब पे भारी साबित हो रहे हैं। चलें बात करते हैं, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आते हैं।